Dear students, in this lecture we study about the combination of errors. इससे पहले आपने ये स्टडी किया हुआ है कि एरर क्या होता है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं. एक क्वांटिटी है, लेंथ है. लेंथ को जब हम मेज़र करते हैं तो हमने कौन सा स्केल सेलेक्ट किया है और हमारे स्केल की क्या एक्यूरेसी है, हमारे मेजरमेंट का मेथड क्या है और इसमें कौन कौन से एरर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. तो इस तरह से हम जब किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उसमें एरर कैलकुलेट करते हैं अगर सिंगल क्वांटिटी है तो. लेकिन ऐसा भी होता है कि कंबाइंड एरर का क्या इफेक्ट आएगा हमारे मेजरमेंट में. फॉर एग्जांपल, you are using the resistance in a experiment and you have calculated the error in the resistance, but you are applying the formula that is the Ohm's law, V is equal to IR. So here there are three quantities. One quantity is the potential difference, one quantity is the electric current I, another quantity is the resistance R. तो इसमें R में एरर आने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस में एरर आएगा, इलेक्ट्रिक करंट में एरर आएगा. इस तरह से हम कंबाइंड एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. We have studied about the combination of errors, and in this study first we study the errors in sum and in difference. Errors in sum and difference. The errors in sum and in difference. First we study about this type of error. Now if there are two quantities A and B, दो क्वांटिटीज हैं A और B. A के मेजरमेंट में एरर आता है डेल्टा A. तो therefore measured value of quantity A will be A plus minus delta A, and measured value of quantity B is B plus minus delta B. So therefore mean absolute error in measurement of quantity A is plus minus delta A, and mean absolute error in measurement of quantity B is plus minus delta B. So therefore, if you are using this formula for sum of these two quantities, Z is equal to A plus B. Now measured value of A is A plus minus delta A, and measured value of quantity B is B plus minus delta B. So thus you can write Z is equal to A plus B, and this is sum of these two quantities, sum of these two quantities. So therefore you can write Z plus minus delta Z is equal to, substitute here the value of A, that is the measured value of quantity A. So this will be A plus minus delta A, and plus B, दूसरा क्वांटिटी है B. इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है? B प्लस माइनस डेल्टा B. तो लुक हियर, Z is the sum of quantity A and B. The measured value of quantity A is A plus minus delta A, and the measured value of quantity B is B plus minus delta B. Here delta plus minus delta A, what is this? This is the mean absolute error in measurement of quantity A, and B plus minus delta B, here plus minus delta B is mean absolute error
in measurement of quantity B. So what is plus minus delta Z? This is the absolute error in sum of these two quantities. This is the absolute error in sum of these two quantities. So let us here, you have to calculate the absolute error in sum of these two quantities. Therefore this may be written as, this is equal to, यह a क्वांटिटी है b है, तो ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तो दिस विल बी a प्लस b इन वन ब्रैकेट. फिर क्या मिलेगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ये मिल गया z प्लस माइनस डेल्टा z. So therefore plus minus delta z is equal to plus minus this one. So thus you can write plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. So this is the absolute error in the sum of two quantities. Here the two quantities are A and B. Now similarly, you can calculate the difference of two quantities. What is the absolute error in the measurement of difference of two quantities? Now in case for difference, now z is equal to a and b are two quantities, तो difference क्या हो जाएगा, a minus b. This is a difference. So therefore you can write z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a minus b plus minus delta b. Here again, what is plus minus delta z? This is the absolute error. This is the absolute error, because this may be either positive, may be negative. So therefore you can take plus minus sign. A plus minus delta a means plus minus delta a. What is this? This is the absolute error in the measurement of quantity A, and this is the absolute error in the measurement of quantity B. So therefore this will be equal to A minus B, and this will be plus minus delta A plus minus delta B. This is z plus minus delta z. So therefore plus minus delta z is equal to plus minus delta a plus minus delta b. So it is very clear here, in case of difference, the absolute error is again same. The absolute error plus minus delta z in the difference of measurement of two quantities is again same as the sum of the two quantities. Here there are four possible values of delta z. Delta z के चार possible values हो सकते हैं. वो कौन कौन से होंगे? Four possible values. Of delta z, and those possible values are plus delta a minus delta b. दूसरा पॉसिबल वैल्यू होगा
प्लस डेल्टा ए माइनस plus delta b, and third possible value is minus delta a minus delta b, and fourth possible value is minus delta a plus delta b. You can derive from this equation the possible value of delta z. अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो प्लस डेल्टा ए और यहाँ आ जाएगा माइनस डेल्टा बी. दूसरी वैल्यूज हो सकती है प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी बिकॉज साइन इज प्लस माइनस. इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव साइन देन माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा जेड, and by this you can find what is the maximum value of delta z. In all 4 values, which one is the maximum value of delta z? So you can observe here, this one is the maximum possible value of delta z. So therefore you can write here the maximum possible value of the error delta z the maximum possible value is equal to plus delta A plus delta B. This is the maximum possible value, and you can also observe here that the maximum possible value when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is sum of absolute error in the individual quantities. When two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. तो यहाँ दो क्वांटिटीज हैं A और B. तो इन दो क्वांटिटीज में एब्सोल्यूट एरर कितना आया? क्वांटिटी A के मेजरमेंट में आया A प्लस माइनस डेल्टा A, और B के मेजरमेंट में कितना आया? B प्लस माइनस डेल्टा B. मीन्स plus minus delta A is the absolute error in measurement of quantity A. Therefore, this is called the absolute error in one individual quantity, and this is the absolute error in the quantity B. This is absolute error in another individual quantity, and here there are two individual quantities. So therefore, when the two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute errors in the individual quantities. Now next point is errors in product and in division. दो क्वांटिटीज हैं A और B जिनको हमने मेजर किया. क्वांटिटी A का मेजरमेंट हमने लिया A प्लस माइनस डेल्टा A. क्वांटिटी B को हमने मेजर किया और ये मिला B प्लस माइनस डेल्टा B. तो हियर प्लस माइनस डेल्टा A इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी A, and plus minus delta B is the absolute error in measurement of quantity B. If both the quantities are multiplied, so therefore you can write Z is equal to A into B. तो अगर दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो Z में कितना एरर आएगा ये हमें कैलकुलेट करना है. और दूसरा, अगर डिवीज़न लेते हैं Z is equal to
ए डिवाइडेड बाई बी, तो जेड में कितना एरर आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द प्रोडक्ट एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इन द डिवीजन। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे। तो देयरफॉर व्हाट इज द absolute error in measurement of quantity z, and that will be plus minus delta z is equal to quantity A. So therefore this will be A plus minus delta A, and quantity B, so this will be B plus minus delta B. ये मल्टीप्लाई किया हमने, इसलिए प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। Therefore this is equal to, अब इस क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, फिर इस क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकेंड क्वांटिटी से, तो यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन प्लस माइनस है, तो देयरफॉर साइन विल बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब यहाँ से सेकेंड क्वांटिटी को ले लिया इस ब्रैकेट से, यहाँ साइन है प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, तो दिस विल बी बी इंटू डेल्टा ए। फिर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे इसके सेकेंड क्वांटिटी से, तो दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। नाउ डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय जेड। लेफ्ट हैंड साइड को हम z से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम डिवाइड कर देंगे ए बी से, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, ए बी से। यू कैन राइट हियर, जैसे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जो हर जगह हमने पढ़ा है, जैसे ए प्लस बी है और इसको डिवाइड करना है 2 से, तो आंसर क्या आएगा, ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। सेम वैसे ही z को z से डिवाइड करेंगे और प्लस माइनस डेल्टा z को भी z से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। यहाँ पे ए बी को जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड देन प्लस माइनस, अब ए से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा डेल्टा बी अपान बी, इसलिए कि ऐसे कैंसिल हो गया। अब फिर इसको डिवाइड करने का, तो देयरफॉर प्लस माइनस बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर डेल्टा ए अपान ए, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपान ए बी, राइट। इसको हम 2 जगह भी लिख सकते हैं, जैसे दिस इज डिवाइडेड बाय, यू कैन राइट हियर डेल्टा ए अपान ए और डेल्टा बी अपान बी। यू कैन राइट आल्सो इन दिस फॉर्म, तो इसको मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया, सेपरेट कर दिया, डेल्टा बी अपान बी, ये ब्रैकेट में ले सकते हैं, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। नाउ हियर यू कैन सी डेल्टा ए is the absolute error in the measurement of quantity A, delta B is the absolute error in measurement of quantity B, means delta A will be small, very small in comparison to quantity A. For example, if you are measuring the length, आप लेंथ मेजर कर रहे हो और लेंथ आया 100 मीटर,
तो किसी को भी बोलेंगे मेजर करो लेंथ को, तो सपोज दैट ये कितना आया 100.6 मीटर है कोई लंबाई जिसको हमने मेजर किया। 2 ऑब्जर्वर्स को दिया मेजर करने के लिए, 2 स्टूडेंट्स को दिया। पहले स्टूडेंट ने मेजर किया 100.7, किसी स्टूडेंट ने मेजर किया 100.5। तो यहाँ आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो एरर है। तो एरर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी, मेजरमेंट में एरर बहुत स्मॉल होता है। तो दिस इज द एब्सोल्यूट। अब वो प्रोसेस के तहत एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड करते हैं, वो अलग बात है। ये मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, यू नो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा बहुत स्मॉल क्वांटिटी होगा इन कंपेरिजन टू द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो इसलिए यह बहुत स्मॉल होगा, ये भी बहुत स्मॉल होगा, और 2 वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत स्मॉल होगा। इसलिए ये पूरे क्वांटिटी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द रीज़न टू निगलेक्ट द क्वांटिटी? बिकॉज डेल्टा ए अपॉन ए इज़ वेरी स्मॉल एंड डेल्टा बी अपॉन बी इज़ ए वेरी स्मॉल, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट विल बी सो स्मॉल कैन बी नेग्लेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। Thus here, therefore you can write 1 plus minus delta z upon z is equal to 1 plus minus delta b upon b plus minus delta a upon a. Now here, what is the error in the measurement of product of the quantity? तो measurement में error जो आया वो क्या होगा? That will be delta z upon z, and this will be equal to delta a upon a, अगर हम इसको पहले लिख लेते हैं तो, and plus delta b upon b. Now the error in measurement of quantity z, इस इक्वेशन से कितना निकाला हमने? यहाँ साइन दे देंगे प्लस माइनस, यहाँ पे भी साइन है प्लस माइनस, यहाँ भी साइन है प्लस माइनस। तो ये एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी z निकल गया। But what is the maximum? This error is the relative error because delta z upon z is called relative error. ये भी relative error है, ये भी relative error है। तो maximum relative error कितना होगा in the measurement? तो therefore you can write maximum relative error in measurement of quantity z will be equal to delta z upon z, and this will be equal to delta a upon a plus delta b upon b. This is maximum relative error in the measurement of the quantity which is the product of two quantities. This formula also applies to the division of two quantities. Thus, when two quantities are multiplied or divided, the maximum relative error in the result is the sum of relative errors in each quantity. Thus, when two quantities are multiplied or divided, the maximum relative error in the result is sum of relative errors in each quantity. जैसे दो क्वांटिटीज हैं A और B. When two quantities are multiplied, इनको मल्टीप्लाई किया A into B, मल्टीप्लाई करने से क्वांटिटी मिला Z, या फिर इन दोनों क्वांटिटी को एक क्वांटिटी को दूसरे से डिवाइड किया और रिजल्ट मिला Z A by B करने पे,
तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया उसमें कितना एरर होने के चांसेस है, तो उसका जो रिलेटिव एरर होगा, किसका, मल्टीप्लाई करने के बाद रिलेटिव एरर होगा, दैट इज डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल, दिस इज द रिलेटिव एरर in the product of these two quantities, and this will be equal to delta A upon A plus delta B upon B. Means what is delta A upon A? This is the relative error in the measurement of quantity A. And what is delta B upon B? This is the relative error in the measurement of quantity B. So therefore you can say this statement. But if two quantities are measured and in their division, what is the relative error? That relative error will be same like this. यहाँ पे भी यही relative error होगा. Now next point is errors due to the power, that is called index of measured quantity. जिससे आप कोई क्वांटिटी मेजर करते हो जिसका पावर 3 है, you are measuring a quantity A and the power of quantity A is 3. So therefore you can write Z, that is measured by this quantity. तो A का पावर हो गया 3. तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू A इंटू A इंटू A. तो अभी आपने स्टडी किया था कि देयर आर टू क्वांटिटीज A एंड B, तो देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू Z. तो दोनों के प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर कितना आएगा, तो हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू प्लस माइनस के फॉर्म में हमने लिया था, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना लिया था हमने, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B. और सेम सिचुएशन हमने ऑब्जर्व किया था, अगर ये A बाई B है तो भी इतना ही रिलेटिव एरर आएगा. मीन्स सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ड्यू टू इंडिविजुअल मेजर्ड क्वांटिटीज. तो नाउ हियर यू कैन राइट हियर डेल्टा Z अपॉन Z आप फाइंड कर सकते हो, कितना आएगा, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A. मीन्स द पावर इज 3, इंडेक्स इज 3, मेजर्ड क्वांटिटी का इंडेक्स कितना है, 3 है. तो देयरफॉर सम ऑफ 3 टाइम्स of relative error of that quantity. तो therefore you can write here 3 times, मतलब कि 3, अगर इसको सम भी करते हो आप तो यही मिलेगा 3 इंटू डेल्टा A अपॉन A. therefore you can say here the relative error in Z is 3 times relative error in quantity A. Relative error in Z is 3 times the relative error in quantity A. Similarly, अगर यहाँ पे पावर हम 4 ले लेते हैं, Z इज इक्वल टू A का पावर 4 लेते हैं, तो कितने टाइम्स रिलेटिव एरर आएगा, तो देयरफॉर डेल्टा Z अपॉन Z विल बी इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा A अपॉन A. हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4. अगर इसको हम 5 ले लेते हैं तो डेल्टा A बाई A प्लस 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 डेल्टा A बाई A. मीन्स कितने टाइम्स, जितना इसका पावर है, 4 है तो 4 टाइम्स, 3 है तो 3 टाइम्स, 5 है तो 5 टाइम्स, n है तो n टाइम्स. तो देयरफॉर इन दिस वे you can find the relative error in the measurement of such type of quantities due to power of measured quantity. Now suppose that
द पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इन द फार्मूला इज n, मतलब a मेजर्ड क्वांटिटी है, इसका पावर n है। तो इस मेजरमेंट में कितना एरर आएगा? यू नो दैट द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट डेल्टा z अपॉन z विल बी इक्वल टू n टाइम्स the relative error in the measurement of that quantity. Now if such type of quantity is given to you, that quantity z is equal to a to the power p and b to the power q and c to the power r. So what will be the relative error in such type of given quantities? मतलब इसमें प्रोडक्ट भी है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी है और दो क्वांटिटीज़ के बीच मतलब डिवीजन भी है, यहाँ डिवीजन भी है और प्रोडक्ट भी है। तो therefore what will be the relative error in such a case? Therefore relative error delta z upon z will be equal to relative error, that is a p delta a upon a। अगर प्रोडक्ट है तो हम प्लस लेते हैं, तो therefore प्लस q डेल्टा b अपॉन b, और डिवीजन है तभी भी हम प्लस लेते हैं, इसलिए कि प्रोडक्ट और डिवीजन दोनों में सेम फार्मूला अप्लाई होता है। तो therefore प्लस r delta c upon c. You can observe here, if power is more या इंडेक्स ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, तो ऐसे क्वांटिटीज़ में जो एरर होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल a स्क्वायर इज इक्वल टू z, यहाँ पे जो एरर आएगा मेजरमेंट में पावर 2 है, तो यहाँ पे जो एरर आएगा, और अगर वहीं पे z इज इक्वल टू a का पावर 3 लेते हैं तो ज़्यादा एरर किस में आएगा? इस तरह के कैलकुलेशन में ज़्यादा एरर आएगा, इसलिए कि यहाँ पावर मेजर्ड क्वांटिटी का पावर 3 है, यहाँ मेजर्ड क्वांटिटी का पावर 2 है, इसलिए यहाँ पे एरर ज़्यादा आएगा। और अगर इसको और ज़्यादा करते हैं, a का पावर 10 कर देते हैं, तो एरर और इंक्रीज हो जाएगा। तो देयरफॉर thus the quantity in the formula which has large power is responsible for the maximum error. Now take this one example which is application of earlier study, that is the relative error and percentage error. तो क्वेश्चन ये है कि in an experiment to determine the volume of an object, mass and density are recorded as m। यहाँ मास रिकॉर्ड किया गया और कितना रिकॉर्ड किया गया? दिस इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.15 kg, और डेंसिटी रिकॉर्ड किया गया रो इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 kg मीटर टू द पावर -3। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि मास जो रिकॉर्ड किया गया वो केजी में रिकॉर्ड किया गया, दैट इज एसआई यूनिट, और डेंसिटी भी एसआई यूनिट में रिकॉर्ड किया गया। व्हाट डू मीन बाय 5 प्लस माइनस 0.15? इट मीन्स मास प्लस माइनस डेल्टा एम। व्हाट इज एम? एम इज द क्वांटिटी मास which is measured here, and delta m is the error in the measurement. Similarly, rho is equal to 5 plus minus 0.2, तो रो प्लस माइनस डेल्टा रो, इसका मतलब ये हुआ, मतलब इस मेजरमेंट में m कितना है? 5 है, प्लस माइनस डेल्टा m कितना है? 0.15 है। डेंसिटी के मेजरमेंट में रो कितना है? 5 है, प्लस माइनस डेल्टा रो कितना है? 0.2 है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने से पहले हमें फाइंड करना होगा रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
you must know what is the formula of the density. You know that density का definition क्या होता है? Mass per unit volume is called density. तो thus you can write here density is equal to mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. अब इसको हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम यहाँ हमें कैलकुलेट करना है और रिलेटिव एरर हमें किस में कैलकुलेट करना है? रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कैलकुलेट करना है। इसलिए फार्मूले को वॉल्यूम के फॉर्म में ले लेंगे। वॉल्यूम को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम का सिंबल क्या है? वॉल्यूम का सिंबल V है। मास का सिंबल क्या है? M है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अब ये जो फाइनल क्वांटिटी है वह डिवीजन है दो क्वांटिटीज़ का, मतलब m और रो का रेशियो है। तो यहाँ रिलेटिव एरर जो मिलेगा डेंसिटी में, दैट इज dV अपॉन V इज इक्वल टू, यहाँ डिवीजन है दो क्वांटिटी का। तो याद करो आप, इससे पहले हमने फाइंड आउट किया था कि दो क्वांटिटीज़ है A और B, और तीसरी क्वांटिटी हमने Z लिया था, Z इज इक्वल टू A अपॉन B, जो इन दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो है। तो रिलेटिव एरर हमने फाइंड किया था, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, राइट। तो वो फार्मूला हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो, राइट। What is this here? Relative density in volume. So what is the percentage density in volume? This is relative error in the volume. So therefore percentage error in volume इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा M अपॉन M प्लस डेल्टा रो अपॉन रो, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू डेल्टा M की वैल्यू रखेंगे। मास को मेजर करने में M प्लस माइनस डेल्टा M कितना दिया था? प्लस माइनस डेल्टा M इज इक्वल टू 0.15। तो यू कैन राइट हियर 0.15, और m कितना है? 5 है, फिर प्लस आ जाएगा। डेल्टा रो मतलब डेंसिटी कितना मेजर किया हुआ है? 5 प्लस माइनस 0.2, तो इट विल बी 0.2 अपॉन 5, और मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 500 प्लस यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 50 इंटू 100। Therefore after simplification you can find here 0.03, this will be 0.03 प्लस 2 को 50 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा 0.04 एंड इंटू 100। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 0.07 इंटू 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7, तो दिस विल बी 7%।
So therefore, the percentage error will be 7%. Now, the next content of this topic will be in the next lecture. Thank you.